ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم آج بھی شدید گرم رہے گا۔ محکمہ موسمیات نے شہریوں کو ہیٹ ویو کے خطرے سے خبردار کر دیا۔ کراچی آج سے 5 روز تک ہیٹ ویو کی لپیٹ میں رہے گا۔ جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں گرمی 4 سے 6 ڈگری زیادہ رہنے کی توقع۔ بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں پارہ 5 سے 7 ڈگری معمول سے اوپر جا سکتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس۔ ایکنک نے 355 ارب روپے سے زائد کے 9 ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دی۔ ٹرانسپورٹ، توانائی، تعلیم، آبی وسائل، تجارت، سیاحت اور دیگر شعبوں کے منصوبے شامل۔ دوبارہ حملہ کرنے کا سوچا تو بھارت تمہارا کچھ نہیں بچے گا۔ پوری دنیا کو بتا دیا کہ افواج پاکستان کو کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ ہم امن اور جنگ دونوں کے لیے تیار ہیں۔ مسٹر مودی، چوائس آپ کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اگلے مورچوں پر جوانوں اور افسروں سے خطاب۔ کہا، تم نے ہمارے نیلم جہلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اسے زیادہ نقصان پہنچتا تو تمہارے بغلیار اور دوسرے ڈیم تباہ و برباد کر دیتے۔ کان کھول کر سن لو، اگر ہمارا پانی بند کرنے کا سوچا تو واقعی خون اور پانی اکٹھا نہیں بہے گا۔ قوم کے جوان اپنے پانی کا حق دلیری سے قائم رکھیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا، آرمی چیف، ایئر چیف اور نیول چیف قوم کی آنکھوں کے تارے بن چکے ہیں۔ اس پوری جنگ کی پلاننگ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کی۔ بطور پاکستانی مجھے آرمی چیف پر فخر ہے۔ مودی اپنے آپ کو علاقے کا تھانے دار سمجھتا تھا، وہ جھوٹا خیال بھی تباہ ہو گیا۔ ہم خطے میں ترقی اور خوشحالی چاہتے ہیں۔ مودی کو کہتا ہوں، UN قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر حل کریں، پھر تجارت بھی کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پسرور چھاونی کا دورہ۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ایئر چیف مارشل ظہیر بابر سدھو بھی ہمراہ تھے۔ نائب وزیر اعظم اور وفاقی وزراء بھی موجود۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر جیپ چلا کر وزیر اعظم کو اگلے مورچوں تک لے کر گئے۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف اگلے مورچوں پر موجود افسروں اور جوانوں سے ملے، گلے سے لگایا۔ مارکہ حق میں افواج پاکستان کے پیشہ ورانہ مہارت کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم کو لڑائی کی نوعیت اور فوجی دستوں کی تیاریوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ مودی آپریشن سندور پر اتحادیوں کی حمایت حاصل کرنے میں ناکام۔ بھارتی میڈیا نے عالمی سطح پر بھارت کے تنہا ہونے کا اعتراف کر لیا۔ بھارتی اخبار انڈیا ٹوڈے نے لکھا، امریکہ، جاپان، آسٹریلیا نے آپریشن سندور کی حمایت نہیں کی۔ آپریشن سندور کے دوران کواد اتحادی غائب ہو گئے۔ صدر ٹرمپ نے بھارت کو آپریشن سندور کا کریڈٹ تک نہ لینے دیا۔ انڈین ایکسپریس نے لکھا، آپریشن سندور کے دوران بھارت کو کسی پڑوسی کی حمایت نہیں ملی۔ روس کی بے رخی نے بھارت کی خارجہ پالیسی کی کمزوریوں کو بے نقاب کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر UAE کا ٹیلی فونک رابطہ۔ UAE کے صدر کا پاک بھارت جنگ بندی کا خیر مقدم۔ امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ وزیر اعظم کی جنوبی ایشیا میں حالیہ بحران کو کم کرنے کے لیے UAE کے کردار کی تعریف۔ کہا، پاکستان سنتاس معاہدے کو کبھی چیلنج نہیں ہونے دے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور UN سیکرٹری جنرل کا ٹیلی فونک رابطہ۔ انتونیو گوتریس کی خطے کی کشیدہ صورتحال میں کمی کے لیے کوششوں کی تعریف۔ وزیر اعظم نے کہا، پاکستان نے خطے کے امن کے وسیع تر مفاد میں جنگ بندی پر اتفاق کیا۔ عالمی برادری کو بھارتی جارحیت کا نوٹس لینا چاہیے۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا منصفانہ حل ناگزیر ہے۔ امریکی صدر کا مشرق وسطیٰ کا تاریخی دورہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ سعودی عرب کا دورہ مکمل کر کے قطر پہنچ گئے۔ امیر قطر نے استقبال کیا۔ دوحہ کے دیوان امیری میں صدر ٹرمپ کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ قطر نے امریکہ سے ہتھیار اور $200 ارب کے بوئنگ طیارے خرید لیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ قطر کے دوران مختلف معاہدوں پر دستخط۔ شیخ تمیم نے کہا، امریکی صدر کا تاریخی دورہ خوش آئند ہے۔ ٹرمپ کے ساتھ مختلف امور پر اہم گفتگو ہوئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، امریکہ کے پاس بہترین دفاعی ہتھیار ہے، معاہدہ خوش آئند ہے۔
मशरिक़ वस्ती में सूरत हाल की बेहतरी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। कतर ने मुख्तलिफ उमूर में हमेशा बहुत मदद की है। अमीर कतर से पुरानी दोस्ती है, ये बेहतरीन शख्स है। कतरी अमीर सदर ट्रंप को महंगा तरीन तैयारा गिफ्ट करेंगे। फ्लाइंग पैलेस की मालियत $40 करोड़ है। इस तैयारे को एयरफोर्स 1 के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। Deal with Iran. I want to do something if it's possible. But for that to happen, it must stop sponsoring terror, halt its bloody proxy wars, and cease its pursuit of nuclear weapons. They cannot have a nuclear weapon. सियासत, मुफाहमत और कारोबार। सदर ट्रंप के दौरा अरब खलीज में एक तीर से कई शिकार। डोनाल्ड ट्रंप ने शाम पर आयद पाबंदियां खत्म कर दी। ईरान को भी मुआहदे की पेशकश। कहा, ईरान के साथ मुआहदे के लिए जो मुमकिन हो सका करूंगा। फजूल प्रॉक्सी वॉर्स का खात्मा चाहता हूं। मशरिक़ वस्ती में कशीदगी फैलाने वालों से निमटना होगा। मेरी इंतजामिया गजा के मुस्तकबिल के लिए काम कर रही है। इब्राहिम मुआहदे में मजीद मुल्क शामिल करेंगे। इजलास से पहले अमरीकी सदर से शाम के अबूरी सदर अहमद अल-शरा की मुलाकात। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान वीडियो लिंक पर शरीक थे। पाबंदियां खत्म होने के ऐलान के बाद शाम में जश्न। हर चीज बैकफायर की हुई है। ज्योतिषियों को बड़ा मानते हैं मोदी साहब, पता करें कि मेरा ख्याल है सितारे गर्दिश में है। 14-15 साल से यह सितारा अरूज में था। टाइम हैज कम टू ज़वाल आ रहा है। अपना ख्याल है कि दिस सेंचुरी बिलोंग्स टू द चाइनीज। मोदी जिस हालत में है, अपने जख्म चाट रहा है, उसको मुसीबत पड़ गई है। मोदी हैज प्लेड हिज इनिंग्स। ही इज ऑलरेडी बैक इन पवेलियन। मोदी का मुस्तकबिल खत्म शुद। ये सदी चीन की होगी। मोदी ने अपनी इनिंग्स खेल ली, जल्द पेविलियन लौट जाएगा। मेरा ख्याल है कि भारत को अपने लिए अब नया लीडर ढूंढना पड़ेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा, जनरल बाजवा के दौर में भी इतनी सिविल मिलिट्री हम आहंगी नहीं थी जितनी आज है। लाइन ऑफ कंट्रोल अब 1973 की पुरानी हैसियत में वापस चली गई है। पुरानी हैसियत में जाना भी पाकिस्तान की एक कामयाबी है। चीनी मशीनरी और ऑपरेटर्स पाकिस्तानी हो तो बड़ी ताकत बन जाती है। दुनिया भी सोच रही है कि चीन पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन ताकतवर बन गया है। अमेरिकी सदर ट्रंप दुनिया में अमन के ख्वाहां हैं। ट्रंप रूस यूक्रेन जंग खत्म कराने और गजा में भी अमन के लिए इक़दाम कर रहे हैं। छह और 7 मई की दरमियानी शब भारतीय इश्तियाल अंगेजी में जख्मी 2 बहादुर सपूत शहीद हो गए। हवलदार मोहम्मद नवीद और पाक फजाइया के सीनियर टेक्नीशियन मोहम्मद अयाज अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। मुसल्लह फौज के शहदा की तादाद 13 हो गई। सदर आसिफ अली जरदारी का शहीद जवानों को खिराज अकीदत। शहदा के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। कहा, शहदा हमारा असासा है, कुर्बानियां कभी फरामोश नहीं करेंगे। भारत का जारहाना शिद्दत पसंद रवैया इलाकाई अमन के लिए खतरा है। हिंदुत्वा नजरिए से पूरे खित्ते की सलामती को शदीद खतरात हैं। सदर आसिफ अली जरदारी की CMH रावलपिंडी के दौरे में गुफ्तगू। कहा, मुल्क की खुद मुख्तारी और कौमी सलामती पर कोई आंच नहीं आने देंगे। कौम किसी भी जारियत से निमटने के लिए मुत्तहिद और पुराज़्म है। सदर मुमलिकत ने भारतीय हमलों में जख्मी पाक फौज के जवानों और शहरियों की अयादत की। बहादुरी और हुब्बुल वतनी के जज्बे को सराहा। कहा, कौम अपने सिपाहियों और शहरियों की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। पाकिस्तान ने सिंतास मुआहदे पर भारत के खत का जवाब दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का कहना है, सिंतास मुआहदे में उसे मुअत्तल करने की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। सिंतास मुआहदा एक बैनुल अक़वामी जिम्मेदारी है जिसकी पासदारी जरूरी है। मुआहदा मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल और फरीकैन पर लाजिम है। पाकिस्तान मुआहदे के तहत अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करेगा। पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया, मुआहदे की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल होगी। कोयटा में रैली पर दस्ती बमों से हमला, एक शख्स जाँ बहक, 10 अफराद जख्मी। PP रुकन असेंबली अली मदद जतक रैली की क़यादत कर रहे थे। अली मदद जतक की गाड़ी को नुकसान पहुंचा। तर्जुमान हुकूमत बलोचिस्तान शाहिद रिंज ने कहा, मुंतखब नुमाइंदों पर हमले जमहूरी निज़ाम पर हमले के मुतरादिफ हैं। हमलावरों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा।
कराची में रात गए 2 गाड़ियों से कुचल कर 3 मोटरसाइकिल सवार जहां बहक। साइट एरिया कोस्टर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी जान से गए। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। क्लिफ्टन में वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जहां बहक। हादसे के बाद ड्राइवर वाटर टैंकर समेत फरार हो गया। कराची मुनी नामी जहां बहक मोटरसाइकिल सवार कायदाबाद का रिहायशी था। फैसलाबाद में तेज रफ्तार चंची रिक्शा ट्रॉलर से जा टकराया। रिक्शे में सवार 2 अफराद जहां बहक 3 जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा रिक्शे की तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। जहां बहक अफराद में रशीदाबाद का नदीम और नामालूम शामिल हैं। भारतीय फौज की मुसलमान तर्जुमान भी इंतहा पसंदों के निशाने पर। भारतीय फौज की कर्नल सोफिया को दहशतगर्दों की बहन करार दे दिया। मध्य प्रदेश से बीजेपी के सीनियर रहनुमा विजय शाह ने कहा, मोदी ने हमला आवरों की बहन को ही जहाज में भेजकर हमले करवाए। इस नफरत अंगेज बयान से हुकूमत शदीद तनकीद की जद में आ गई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रियासती वजीर विजय शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। ब्रसल्स में पाकिस्तानी कम्युनिटी का फौजी पाकिस्तान से इज़हार यकजहती, भारत जारहियत के खिलाफ एहतजाज और मुजाहरा पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने किया। मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी कश्मीरियों की भरपूर शिरकत। मराकश, अलजज़ायर, तुर्की, ट्यूनिस, दीगर इस्लामी ममालिक के नौजवान भी शरीक हुए। शुरका के पाकिस्तान जिंदाबाद और अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद के फलक शगाफ नारे। पाकिस्तान का मतलब क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? पाकिस्तान जिंदाबाद पाइंदाबाद। दुश्मन भारत का गरूर खाक में मिलाने पर झंग के शहरियों का मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन। राफेल को तबाह और भारत को शर्मसार करने वाले तैयारे J-10C का इंसानी मॉडल बनाया। दरबार सुल्तान बाहू पर जज्बा हुब्बुल वतनी का फकीदुल मिसाल मुजाहरा। हजारों अफराद ने अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन और दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें फतह दी। इंडिया ने हमारा पानी बंद किया, हमने उसकी लाइट बंद की। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। ऑपरेशन बुनियाद मुरसूस में अजीम फतह पर बच्चों का भी पाक फौज को खिराज तहसीन। आप भी फोन उठाएं और अपने एहसासात और जज्बात का इजहार करें। पाक अफवाज का शुक्रिया अदा करें और अपने पैगामात स्क्रीन पर नजर आने वाले नंबर पर भेजें। पाकिस्तान सुपर लीग के बाकी मैचों की तैयारियां तेज। पीसीबी ने शेड्यूल जारी कर दिया। फ्रेंचाइजर्स के भी खिलाड़ियों से मुसलसल राब्ते, स्क्वाड फाइनल करना शुरू कर दिए। इंग्लैंड के एलेक्स हेल्स ने PSL के बाकी मैचेस खेलने की हामी भर ली। इस्लामाबाद यूनाइटेड की नुमाइंदगी करेंगे। टेबल पर कोयटा की पहली और कराची की दूसरी पोजीशन। पेशावर, इस्लामाबाद और लाहौर की टॉप 4 तक रसाई अगर मगर का शिकार। मैचेस का आगाज हफ्ते से रावलपिंडी में होगा। अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है पाकिस्तान को, हमारी फौज ने खुशी दी है, वो तो खैर हम कभी भूल नहीं सकते। मेरी रिक्वेस्ट सबसे है कि स्टेडियम में जरूर आए, झंडे लेके आए, कि पता चले कि पाकिस्तान ने जंग जीती है और ऐसी मार दी है कि वो सदियों याद रखा जाए और ऐसे ही हम लोग सेलिब्रेट करें, पता चलना चाहिए। और स्टेडियम आए, हम आपके मुंतजर रहेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग का शायकीन क्रिकेट के नाम खत लिखा। कौम की हमायत का शुक्रिया, आपकी सपोर्ट से ही PSL को जल्द वापस लाए। पाक भारत कशीदगी में कौम के जज्बे में कोई कमी ना। उम्मीद है पिंडी और लाहौर में भी यही जोश देखने को मिलेगा। साबिक क्रिकेटर कामरान अकमल का कहना है, झंडे लाएं, जश्न मनाएं, स्टेडियम आए, जंग जीती है, दुनिया को बताएं। अफवाज पाकिस्तान ने जो खुशी दी उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। भारत इस शिकस्त को सदियों नहीं भूलेगा। और गजा में इस्राएली फौज की जारियत, फजाई हमलों में 84 फलस्तीनी शहीद।
جبالیہ میں کئی گھروں پر رات گئے بمباری، 22 بچوں اور 15 خواتین سمیت 50 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے گزشتہ روز جبالیہ اور اطراف کے علاقوں میں رہائشیوں کو انخلا کی وارننگ دی تھی۔